A very good morning to students. Okay, we are going to discuss today a lecture on workability of concrete. So basically, what is a workability? I think most of the students must be knowing this, especially direct second year students. That workability means what? Workability is the ease with which a concrete can be mixed, transport, compact, and placed. ओके, कितनी आसानी से आप एक कंक्रीट को मिक्स कर सकते हो, उसको उस जगह से हटा के दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो जहां भी वो लग रहा है. देन कितने आसानी से आप उसे कॉम्पैक्ट कर सकते हो, बिकॉज कॉम्पैक्शन इज मच नेसेसरी फॉर अचीविंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट. ओके, all of you must be knowing that you require a compacting rod after placing the concrete in a formwork to get it compacted firmly so that उसके बीच में कोई void ना बचे, ताकि उसमें हमें maximum percentage of strength achieve हो. Okay, let's see this video which says something about our workability. So all of you must be knowing that a water cement ratio plays a very important role for achieving a strength of a concrete. Okay, for achieving a strength of a concrete, water cement ratio plays a much important role. कैसे? Water upon cement, इसका ratio, it generally varies or ranges between 0.4 to 0.6, where you will get a maximum strength, maximum percentage of probable strength. Okay, whereas if you will go beyond 0.6, you will going to get your compressive strength decreasing gradually with the increase in the water cement ratio. Okay, तो वाटर सीमेंट रेशियो आपको बढ़ाना नहीं है 0.6 के ऊपर. इट शुड रेंज बिटवीन 0.4 to 0.6. 0.4 पर usually you will get a maximum compressive strength, whereas on 0.3 also you will get a probable result of your compressive strength, but आपको इसके बीच में ही रहना है, ये रेंज के बीच में, to achieve the maximum strength. Okay, but apart from this water cement ratio, there is another thing which plays a vital role in achieving a strength of a concrete. Now what is that thing? Let's discuss about it. All of you must be knowing कि compaction भी बहुत जरूरी है स्ट्रेंथ के लिए. देखिए, पहली क्या बात हो गई हमारी, वाटर सीमेंट रेशियो जो बहुत जरूरी है. सेकेंड थिंग, कॉम्पैक्शन ऑफ अ कंक्रीट. देखिए, कंक्रीट को हमने फॉर्मवर्क में डाला, इस इमेज में आपको नजर आ रहा है, हमने कंक्रीट को इस फॉर्मवर्क में प्लेस किया है. अभी हमने इसको कॉम्पैक्ट नहीं किया है, तो ये प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं दिख रहा है. ठीक है, एट दिस टाइम यू विल फाइंड दैट देर आर entrapped एयर इनसाइड दिस कंक्रीट मिक्स. ओके, रीजन बिहाइंड इट इज आपने इसको कॉम्पैक्ट नहीं किया है प्रॉपरली, उसको अंदर क्या कहेंगे हम, टैंपिंग नहीं किया है. ओके, सो यू नीड टू डू अ टैंपिंग so as to remove all the entrapped air which is available inside the concrete. क्योंकि जब concrete सख्त हो जाएगा, यानी कि एकदम सेट हो जाएगा, then आपको वो खाली जगह जहाँ entrapped air है, वो आपका weak point बन जाएगा concrete का. When you will be applying a load over that concrete, so that will be the weakest point जहाँ से आपका concrete टूटना चालू हो जाएगा. That means उस पॉइंट से आपकी स्ट्रेंथ खराब होना स्टार्ट हो जाएगी. तो आपको क्या करना है, इस एंट्रैप्ड एयर को पहले ही निकाल देना है. बाय डूइंग व्हाट? बाय जस्ट सिंपली कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट. ओके, सो व्हाट दिस इमेज सेज इज you will have to compact the concrete so as to remove the entrapped air available in the concrete so as to achieve the strength of a concrete. देखिए, entrapped air की वैल्यू बढ़ाया तो स्ट्रेंथ की वैल्यू कम हो गई. सो नेक्स्ट थिंग विच इट सेज कि अगर हाई वाटर सीमेंट रेशियो है तो आपको पता है क्या होना है, वर्कएबिलिटी तो बहुत बढ़ जाएगी, आप बहुत आसानी से कंक्रीट पर काम कर सकोगे.
लेकिन एट द सेम टाइम ज्यादा पानी कंक्रीट में अवेलेबल रहने से स्ट्रेंथ मार खाएगी। कैसे मार खाएगी? क्योंकि पानी जितना हाइड्रेशन के लिए चाहिए, जितना हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए चाहिए, उतना यूज हो जाएगा, उससे CSH जेल बन जाएगा। दैट वाटर प्लेस विल गेट रिप्लेस्ड बाय अ CSH जेल। लेकिन एक्स्ट्रा वाटर, what about that? That will get evaporated by the heat, by the heat that is getting generated because of the hydration process and also because of sunlight. Okay, so that place will remain vacant for for the complete life of that concrete. Okay, फिर क्या हो जाएगा? Vacant place, void, void, strength कम, cracks मतलब strength खत्म, यानी concrete ही खत्म आपका. Okay, so high water cement ratio बट नेचुरल वर्केबिलिटी बढ़ा देगा, लेकिन स्ट्रेंथ मार खा जाएगी. सो यू जस्ट नीड टू add the water in the appropriate amount as per the water cement ratio. As you all know that water plays as a role of a lubricant in a concrete so that it can be properly mixed, transport, compacted and placed. Okay, so आपको कैसा कंक्रीट चाहिए रहता है? कंक्रीट जो आप प्रॉपरली हैंडल कर सको विदाउट सैग्रीगेशन. कंक्रीट ऐसा होना चाहिए विच कैन बी इजीली हैंडल्ड विदाउट सैग्रीगेशन. कंक्रीट जो इजीली प्लेस हो विदाउट लॉस ऑफ होमोजेनिटी. होमोजेनिटी कैसे लॉस होगी? एग्रीगेट आपका जो अलग भागेगा, पानी आपका अलग भाग रहा है, फाइन एग्रीगेट्स यानी कि सैंड्स अलग भाग रहे हैं. ओके, तो यू विल गेट अ लॉस ऑफ होमोजेनिटी इन अ कंक्रीट अगर ऐसा होता है तो. So you are not required those things while placing a concrete. Okay, देखिए क्या बात बोल रहा हूँ मैं. कंक्रीट कैसा होना चाहिए? जो आसानी से हैंडल हो जाए बिना सैग्रीगेशन के, जो आसानी से प्लेस हो जाए बिना सैग्रीगेशन के. एक ही बात है, विदाउट लॉस ऑफ होमोजेनिटी मतलब विदाउट सैग्रीगेशन. ओके, और जो आसानी से कॉम्पैक्ट हो जाए, एफर्ट ऑफ कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड टू फिनिश आसानी से हो, यानी कि एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट शुड बी लेस. और ये कैसे होगा? बाय एडिंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, नॉट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर. क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर से भी सैग्रीगेशन होना है. ओके, पानी अलग भाग जाएगा. कैसे? क्योंकि एग्रीगेट्स का वेट बहुत ज्यादा होता है. एग्रीगेट्स नीचे दबते चले जाएंगे, पानी ऊपर आते चला जाएगा और पानी ऊपर के सरफेस पे दिखेगा. आप लोग कभी साइड्स पर गए होंगे तो आपने देखा होगा फ्लोर्स पर पानी आपको टॉप सरफेस पे आते हुए दिखता है जब हम कंक्रीट प्लेस करते हैं. ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि हम जब एक्स्ट्रा वाटर डालते हैं, एग्रीगेट का वजन भारी होने की वजह से एग्रीगेट नीचे दबना चालू होते हैं. क्योंकि आप कॉम्पैक्ट भी तो कर रहे हो, तो एग्रीगेट्स नीचे दबना स्टार्ट हो जाते हैं और पानी ऊपर आना चालू हो जाता है. और जहां आपने स्लोप दिया है उस तरफ पूरा पानी निथर जाता है, उस तरफ पूरा पानी ड्रेन हो जाता है. ओके, सो दैट कॉजेस सैग्रीगेशन. ओके, जिससे क्या होगा? आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट था वाटर का वो तो आपका निकल गया बाहर और आगे बह गया. So that will going to hamper your strength of a concrete. So you just require a sufficient and an adequate amount of everything in a concrete so as to prepare a concrete which can be handled easily without segregation, which can be placed easily without loss of homogeneity, and which can be which require less effort for compaction, which is required to finish the concrete. यहाँ देखिए आपका finished concrete है ये कैसे होगा? By doing a compaction. Okay, now all these points जो अचीव करता है कंक्रीट, ऐसे कंक्रीट को हम वर्केबल कंक्रीट कहते हैं. ओके, ऐसा कंक्रीट जो इजीली हैंडल्ड हो जाए, इजीली प्लेस हो जाए और इजीली कॉम्पैक्ट हो जाए. दिस all this are termed by a single all these are called by a single term, that is workability of a concrete. And the proper definition for the workability of the concrete is
It is defined as the property of a freshly mixed concrete, property of a freshly mixed, जो newly आपने बनाया है, property of a freshly mixed concrete, which determines the ease and homogeneity with which it can be mixed, placed, it should be compacted and finished. अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वर्केबिलिटी उस चीज को बोला जाता है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कंक्रीट की, जिससे आप उसे आसानी से मिक्स कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, कॉम्पैक्ट कर सकते हो या कंसोलिडेट कर सकते हो और फिनिश कर सकते हो. ओके, आई होप द वर्केबिलिटी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वर्केबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपको जो प्लेसिंग करनी है कंक्रीट को साइड पर और ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस बहुत दूर है, ओके, तो यू विल हैव टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट. फॉर व्हाट रीजन? फॉर द रीजन कि आपने फ्रेशली कंक्रीट को जो बनाया है उसको आप तुरंत प्लेस नहीं कर रहे हो, आप उसको थोड़ी देर के बाद प्लेस करने वाले हो, आधा घंटा बाद प्लेस करने वाले हो, क्योंकि आधा घंटा तो गाड़ी उसको लेकर जाएगी. सो फॉर दैट रीजन आपको वर्केबिलिटी थोड़ी बढ़ा देनी पड़ेगी ताकि उसका जो वाटर है वो वेदर में लॉस होने वाला जो है वो लॉस हो जाएगा, तो भी हमारा एडिक्वेट अमाउंट बचा रहेगा पानी का. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ वर्केबिलिटी: लो वर्केबल कंक्रीट, हाई मीडियम वर्केबल कंक्रीट एंड हाईली वर्केबल कंक्रीट. ये तीन टाइप्स ऑफ वर्केबिलिटी होती है. ओके, तो ये जो अलग अलग टाइप्स के वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट है वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि हर काम के हिसाब से वर्केबिलिटी वैरी करती है. हर काम के हिसाब से वर्केबिलिटी वैरी करती है. जैसे कि टाइप ऑफ वर्क, वर्क का टाइप क्या है, छोटा काम है या बड़ा काम है, ओके, और काम है क्या एक्चुअली, क्या आप डैम बना रहे हो या बिल्डिंग का स्लैब बना रहे हो, इस पर आपकी वर्केबिलिटी काफी डिपेंड करती है. ओके, वर्केबिलिटी for a column will differ from the vocabulary of a dam, a retaining wall of a dam. Okay, क्योंकि retaining wall of a dam वो बनाना है आपको, तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर है. आपको उतने बड़े स्ट्रक्चर के लिए होमोजेनिटी मेंटेन करना है, यानी कि एक सिंगल यूनिट बनाना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जो आप कंक्रीट बना के प्लेस करोगे उसकी वर्केबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रखोगे. क्यों? और बाद में जो रहेगा उसकी वर्केबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम करोगे. इससे क्या होगा, पूरा रिटेनिंग वॉल एक साथ सेट होने लगेगा एंड इट विल फॉर्म अ सिंगल यूनिट. आई होप आपको समझ में आ रहा है. वेरेज आपके घर की बिल्डिंग का कॉलम बनाना है तो उसमें वर्केबिलिटी बहुत लो वर्केबिलिटी पर भी काम हो जाता है, क्योंकि लो वर्केबिलिटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर कास्टिंग अ सिंगल कॉलम. एक कॉलम ही तो बनाना है, उसमें कितना कंक्रीट लगेगा, तो उसमें ज्यादा वर्केबिलिटी बढ़ा के मतलब नहीं आता है, क्योंकि वो पानी सीधा सीधा बस बहने चालू हो जाएगा. ओके, और वो उतना वर्केबिलिटी, उतने पानी की वहां जरूरत नहीं है. लेकिन डैम बना रहे हो तो आपको ज्यादा वर्केबिलिटी की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इट इज एक्सपोज्ड टू सो मेनी थिंग्स. देखिए, आपको खुले आसमान के नीचे बना रहे हो, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हो और लंबी रिटेनिंग वॉल आपको क्रिएट करना है, कास्ट करना है. तो स्टार्टिंग का जो पैनल है रिटेनिंग वॉल का, उसको थोड़ा सा गीला रखेंगे, उसके बाद थोड़ा कम गीला, थोड़ा कम गीला. उससे क्या होगा, सेटिंग सबकी साथ में होगी. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट पे भी वर्केबिलिटी काफी डिपेंड करती है. अगर आपको जगह पर बनाना है तो आप वर्केबिलिटी कम रखेंगे, लेकिन कहीं से मंगवाना है जो आधा घंटा गाड़ी को चलने में लगेगा तो ऐसी जगह पे वर्केबिलिटी थोड़ी ज्यादा रखेंगे. यानी कि तुरंत बना के आप यूज कर रहे हो तो वर्केबिलिटी कम, लेकिन बन के आ रहा है आधे घंटे बाद तो वर्केबिलिटी ज्यादा. स्लम्प लॉस, लॉस ऑफ स्लम्प,
ये पॉइंट को मैं अभी छोड़ता हूँ, आपको ये मैं एक्सपेरिमेंट में दिखाऊंगा, हमारा प्रैक्टिकल इसके ऊपर। आपको स्लम्प अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाऊंगा। और मेथड्स ऑफ प्लेसिंग पे भी डिपेंड करता है, आप प्लेसिंग कर कैसे रहे हो। अगर आप घमेले से ले जा रहे हो तो वर्केबिलिटी वेरी करेंगी, और आप पाइप के थ्रू प्लेसिंग कर रहे हो तो वर्केबिलिटी वेरी करेगी। कैसे? देखिए, आप घमेले पैन की तरह अगर ले जा रहे हो, पैन के साथ आप ले जा रहे हो कंक्रीट को, तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? सोचिए आप। और पाइप के थ्रू आ रहा है, एक ट्रक से डायरेक्टली पाइप के थ्रू आपका कंक्रीट प्लेस हो रहा है, तो वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? देखिए, जो पाइप के थ्रू आएगा उसकी वर्केबिलिटी ना कम रहेगी। क्यों? क्योंकि वाटर लॉसेस नहीं होगा, वो पाइप के अंदर से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम अ क्लोज कंड्यूट। ओके, वेरएज आप पैन के थ्रू ले जा रहे हो, तो पैन पहले तो जमीन के ऊपर आपने बनाया है, ठीक है, या आपने मिक्सर में बनाया है, तो मिक्सर से आपने एक ट्रॉली कहते हैं जिसको हम, जो फर्मा जैसी रहती है, ओके, उसमें आप उतारोगे, फिर उसके बाद आप उससे पहुंचाओगे, तो सनलाइट को एक्सपोज रहेगा वो, ठीक है। उसको पहले तो भरने को टाइम लगेगा, वो भरेगा जब तक सनलाइट पड़ रही है उस पर, और फिर वो एक्सपोज टू सनलाइट आप उसको ट्रैवल कर रहे हो जहाँ प्लेस करना है वहां पर, और फिर उसके बाद जब प्लेस कर रहे हो तो बॉटम में तो पानी रह गया, आप उसको बस पलटाते हो, तो पलटाते हो तो पूरा पानी नहीं निकल पाता है, मटेरियल पूरा निकाल लेते हो, पानी उसमें कुछ रह जाता है, और उस ट्रॉली का कंटेनर भी तो पानी पिएगा, तो उसमें वर्केबिलिटी हम ज्यादा रखते हैं कंपेयर टू वो कंक्रीट जो पाइप से आ रहा है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर सही वर्केबिलिटी मेंटेन करोगे तो आपकी इकोनॉमी भी मेंटेन्ड होगी और आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि वर्केबिलिटी एकदम कम रखना, उससे भी कंक्रीट बराबर से कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है, और एकदम ज्यादा रखना, उससे भी इशू होगा। क्या इशू होगा? आपका वर्केबल कंक्रीट तो ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा हाईली वर्केबल हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। ओके, सो अगर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलाते हो, यानी एकदम एक्यूरेट वर्केबल कंक्रीट बनाते हो, तो आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि आप स्ट्रेंथ वगैरह सब अचीव करोगे, और आपका टाइम भी बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस आर प्रैक्टिकल ऑन अ कंक्रीट। देखिए, मैं इसमें प्रैक्टिकल्स भी कवर करूंगा। ओके, जो हमारे कंक्रीट के ऊपर प्रैक्टिकल्स है, हम थ्योरी के साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे, और आप उसको प्रॉपरली दिमाग में रखेंगे। ओके, so we are here discussing about our practical on concrete, that is a slump cone test। इसको कहते हैं हम concrete slump test या slump cone test, which is a test for workability of a concrete, which is a test for the workability of a concrete, कि workable है या नहीं concrete, उसको चेक किया जाता है, ठीक है, या कंसिस्टेंसी है या नहीं कंक्रीट की प्रॉपरली, उसको चेक किया जाता है। एकदम ज्यादा कंसिस्टेंसी भी नहीं होना, एकदम कम भी नहीं होना, कंसिस्टेंसी इज वर्केबिलिटी ओनली। ओके, so for this test your aggregate size, the maximum size of the nominal maximum size of the aggregate does not exceed 38 mm। 38 mm से बड़ा aggregate नहीं लोगे। ये एट लेबोरेटरी एंड एट साइट दोनों जगह पे ये टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो आप। इसके लिए आपको स्लम्प लगता है ये विद अ बेस। ओके, इस स्लम्प को मोल्ड भी बोलो आप, स्लम्प कोन बोलो या मोल्ड बोलो। दिस मोल्ड हैव अ बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड अ टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपको मेटल प्लेट लगती है, और जिसकी थिकनेस 1.6 mm बता रहा है,
एक्चुअली इतनी जरूरत नहीं है इसकी थिकनेस मेंटेन करने की, एक मेटल प्लेट चाहिए आपको बस। एंड अ टैंपिंग रॉड, एक टैंपिंग रॉड चाहिए जिसकी डायमीटर 16 mm और 0.6 मीटर हाइट या लेंथ। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट। ओके, सबसे पहली चीज आप उसको अंदर बाहर से क्लीन कर लोगे अच्छे से। और एक चीज जो इसने और एक चीज जो इसने नहीं बताया, दैट इज आपको ऑयलिंग भी करनी है विद इन द कोन। ओके, इन द इंटीरियर ऑफ द कोन यू विल हैव टू डू द ऑयलिंग ताकि उस पर कंक्रीट चिपके ना। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें कंक्रीट डाल रहे हो। कंक्रीट देखिए 4 लेयर्स में डालोगे, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, 1 2 3 एंड 4। आपको 4 हाइट में मोल्ड को फिल करना है विद अ कंक्रीट। ओके, हर एक लेयर, देखिए पहला लेयर डाला है, 25 स्ट्रोक्स आप कॉम्पैक्ट करोगे तो ये प्रॉपरली फिनिश हो रहा है। आप फिर सेकेंड लेयर डालोगे, थर्ड लेयर डालोगे, फोर्थ लेयर डालोगे, और देखिए फोर्थ लेयर ऐसी ऊपर आएगी। सो यू विल, देखिए आप यहाँ पे फोर्थ लेयर ऐसी ऊपर आएगी तो आप यू विल सिंपली कट ऑफ द एज ऑफ द मोल्ड। अब क्या किया, सीधा सीधा कोन को उठा लिया, ये आपको एक शेप मिल गया। ओके, इसको हम स्लम्प कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्लम्प ऑफ अ कंक्रीट। ठीक है, स्लम्प वैल्यू किसको कहते हैं, देखिए स्लम्प वैल्यू किसको कहते हैं, आपका मोल्ड की जो टोटल हाइट थी उससे कितना ड्रॉप हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्लम्प वैल्यू, दैट इज इन mm। ओके, स्लम्प वैल्यू किसको कहते हैं आपको क्लियर हो गया है। देखिए ये कैसे बना, अगर आप एकदम गीला मिक्स बनाते तो क्या होता, ये पूरा बिखर जाता। जब आपने स्लम्प कोन में जब आपने कंक्रीट डाला और आपने मोल्ड को उठा लिया, और अगर पेस्ट बहुत गीला होता तो ये पूरा बिखर जाता, फैल जाता, फ्लैटर हो जाता। लेकिन आपने वर्केबिलिटी उसकी अच्छी रखा, उसमें लो वर्केबिलिटी या मीडियम वर्केबिलिटी रखा तो आपको ज्यादा हाइट मिलेगी। ठीक है ना, सीधा सीधा एग्जांपल इसका वही है कि एक रेत को, आपने गीली रेत को एक किसी कोन में डाला और आपने उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट किया और फिर कोन हटा लिया तो आपको अच्छा बड़ा पहाड़ बना हुआ मिलेगा। ठीक है, और वही गीली मिट्टी लिया तो आप कॉम्पैक्ट भी कर लोगे, और जब कोन को उठाओगे तो पता चलेगा वो पूरी रेत फिसल गई है। ठीक है, तो क्या वजह बनी इसकी, वाटर। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि अगर वर्केबिलिटी प्रॉपर रखोगे तो स्लम्प कम मिलेगा, और स्लम्प कम मिल रहा है मतलब कंक्रीट अच्छा बन रहा है। ओके, यानी वर्केबल भी है और स्ट्रेंथ भी है। देखिए दीज आर द जनरल 3 शेप्स ऑफ स्लम्प। एक शेप बता रहा है ट्रू स्लम्प। ट्रू स्लम्प किसको बोल रहा है, जो कम से कम गिरा, जिसकी स्लम्प वैल्यू बहुत कम है। इसमें स्लम्प वैल्यू देखिए काफी ज्यादा है, और ये शेयर हो गया, यानी सरक गया, स्लाइड हो गया है, यहाँ से पूरा पोर्शन स्लाइड होकर नीचे गिर गया होगा, तो इसको कहते हैं शेयर स्लम्प, शेयर स्लम्प। और ये तो पूरा कोलैप्स हो गया, ये पूरा पूरा धस गया है नीचे, तो इसको कहते हैं हम कोलैप्सिबल स्लम्प या कोलैप्स स्लम्प। इसमें पानी बहुत ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, और इसमें और भी कम होगा। तीनों भी वर्केबल थे, लेकिन वैल्यू कौन अच्छी दे रहा है, किससे यानी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ये वाले से। इसमें आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा, a chart which shows the slump value 25 to 75 mm, 50 to 100 mm, 100 to 150 mm and more than 150 mm। अगर ये रेंज रहती है 25 to 75 mm, then your workability is low। और ऐसे कंक्रीट को कहाँ यूज किया जाता है, देखो टाइप ऑफ वर्क लिखे हुए, आपको मैंने बताया था वर्कबिलिटी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, एंड स्लम्प लॉस, लॉस ऑफ स्लम्प पे भी, तो लॉस ऑफ स्लम्प पे वर्कबिलिटी डिपेंड करती है। तो आपको जब तीनों शेप दिखे, जब आपको तीनों शेप दिखे तो लॉस ऑफ स्लम्प
इसमें कम है, ठीक है। ऐसा चाहिए तो वोकेबिलिटी अलग, ऐसा चाहिए तो वोकेबिलिटी अलग, और ऐसा तो कोई चाहेगा भी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारी टेबल पे वापस से डिस्कशन करते हैं। अगर लो वर्केबिलिटी यानी इतनी रेंज स्लम्प में आती है तो इसको हम लोअर केबल कंक्रीट बोलते हैं। और ये कहाँ काम आएगा आपको? मास कंक्रीटिंग में। मास कंक्रीटिंग किसको कहते हैं? जहाँ पे बड़ा काम हो रहा है, मास कंक्रीटिंग करना है। मैंने आपको बताया वहां पे भी लोअर केबल कंक्रीट कौन से पॉइंट पर यूज होने वाला है, ठीक है। लाइटली रेनफोर्स कंक्रीट, लाइटली रेनफोर्स कंक्रीट मतलब जहाँ पे रेनफोर्समेंट कम है, ठीक है। तो जहाँ रेनफोर्समेंट कम है वहां पर आप ऐसा थोड़ा सख्त कंक्रीट प्लेस कर सकते हो, और आप अच्छे से उसको कॉम्पैक्ट कर लोगे तो बढ़िया आपका कंक्रीट बन जाएगा। ओके, स्लैब्स के सेक्शन में आप डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्लैब के सेक्शन में आपकी स्पेसिंग अच्छी खासी रहती है, आप अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लोगे और आपका काम हो जाएगा। बीम, वॉल, कॉलम्स, इसमें भी स्पेस होते हैं आपके रेनफोर्समेंट, यानी रेनफोर्समेंट मतलब लोहा काफी दूर दूर होता है, तो आप इजीली कॉम्पैक्ट कर सकोगे। कैनाल लाइनिंग, कैनाल जो होता है उसका स्लैब, आपने देखा होगा कैनाल कैसा होता है, जिसमें से इरिगेशन का पानी आगे बढ़ता है, तो वो एक चैनल या कैनाल, दोनों में से कुछ भी बोलो, या नाला बोलो सिंपली, उसको बनाने के लिए, उसका सरफेस बनाने के लिए आप ऐसा वर्केबल कंक्रीट यूज कर सकते हो। 50 to 100 mm अगर आती है इसकी स्लम्प की वैल्यू, देन वर्केबिलिटी मीडियम कही जाती है। आप ये रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट लो वर्केबल, ये रिजल्ट मीडियम वर्केबल, ये हाई, ये वेरी हाई। अब मीडियम चेक कर लीजिए, हेविली रेनफोर्स कंक्रीट। अगर एक कंक्रीट बना रहे हो आप जिसमें रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा है, तो वो ऐसी जगह पे आप मीडियम वर्केबल लोगे, ताकि आपको ज्यादा कॉम्पैक्शन ना करना पड़े, आसानी से खुद ब खुद वो कंक्रीट फैलने लगे, क्योंकि नहीं तो रेनफोर्समेंट बिगड़ेंगे आपके, ठीक है। सेक्शन के स्लैब में भी आप मीडियम यूज कर सकते हो। अगर ज्यादा आपको स्लैब जो है आपका, उसमें ज्यादा आपको कॉम्पैक्शन नहीं करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, देन मीडियम इज ऑल्सो गुड फॉर द स्ट्रेंथ। फोमवर्क, स्लिप फोमवर्क, बीम, पम्प्ड कंक्रीट, ठीक है। एनीवेज आपको इतने रिजल्ट्स को ख्याल नहीं रखना है, आपको सिंपली ये दो से काम करना है, और इनके जनरली यूजेज समझ लेना है कि लो कहाँ पे यूज करते हैं, मीडियम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे रेनफोर्समेंट ज्यादा है। हाई कहाँ यूज करेंगे? हाई कहाँ यूज करेंगे? पाइलिंग करने में, इन सीटू पाइलिंग, यानी कि आपको बहुत बड़ी पाइल बनाना है, यानी कि आप फाउंडेशन जब बनाते हो साइट पर, ठीक है ना, साइड पे आप पाइलिंग कर रहे हो, वो सिलेंड्रिकल फाउंडेशन आपने देखा होगा, सिलेंड्रिकल पेंसिल शेप फाउंडेशन जो हम साइड पर बना रहे हैं, तो बहुत बड़ा होता है, उसमें मास कंक्रीटिंग वर्क लगता है, ठीक है ना। तो वहां पे आपको नीचे नीचे में पहले हाईली वर्केबल कंक्रीट डालना पड़ेगा, और ऊपर ऊपर में आप लो वर्केबल कंक्रीट से काम कर सकते हो, ठीक है। ट्रेंच फिलिंग, ट्रेंच बहुत बड़ा गड्ढा है, उसको फिल करना है, सपोज राफ फाउंडेशन डालना है, राफ फाउंडेशन डालने के लिए बहुत ज्यादा कंक्रीट लगता है और बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है ना। आप सिंपली क्या करते हो, जमीन के अंदर एक स्लैब बिछा देते हो, तो उसके लिए आपको हाईली वर्केबल कंक्रीट लगेगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, ठीक है। और साथ ही साथ वो आप जमीन पर कर रहे हो, ठीक है ना। तो देयर आर चांसेस कि वाटर सीपेज कहीं ना कहीं से हो, तो वाटर सीपेज हो जाएगा कंक्रीट में से, तो फिर कंक्रीट में क्या बचेगा? तो इट इज रिक्वायर्ड कि आप हाईली वर्केबल कंक्रीट को आप यूज करो फॉर ट्रेंच फिलिंग। ट्रेंच फिलिंग मतलब जो गड्ढे फिल करते हैं उसके लिए। Very high concrete is usually very high workable concrete is usually not adopted, so we are not going to discuss over it. So that's it about the workability of the concrete, the test for workability of a concrete by slum cone test. Okay, so with this we are ending our session. I hope आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आया है, और वर्कैबिलिटी भी आपको अच्छे से समझ में आई है कि वर्कैबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट क्या होता है और वर्कैबिलिटी कैसे टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा से एक कोई एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल को चेक करेंगे, ठीक है, ऑन दिस वर्कैबिलिटी ऑफ कंक्रीट ओनली। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दिस
आफ्टर लिसनिंग टू माय लेक्चर आप लोग काइंडली अपना रोल नंबर और नाम या आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करेंगे प्लीज. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.